Hello my students. Now I'm going to present one more video. Watch this video till end. The video emphasizes on the importance of how effectively and efficiently you can attempt your exam. जो ये हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैंने क्लास 12 इंग्लिश कोर के लिए हम किस तरीके से टाइम के अंदर एज वेल एज विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, मतलब CBSE जो है वो किस किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है. Along with that, I have also shared the model test paper of class 12 for last year. That would help you out to understand कि प्रेजेंटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है एंड हम अपने एग्ज़ाम के अंदर उन प्रेजेंटेशंस को किस जगह पर लेकर आ सकते हैं, as well as some of the important questions like a 5 marker question. अगर वो क्वेश्चन जो है आर्टिकल में, स्पीच में, लेटर में ऐसा आ जाता है, या अ चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसमें हमें कौन सी चीज़ हमें देखनी है, व्हाट आर दोज थिंग्स विच वी शुड लुक इनटू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, दोज की वर्ड्स जिसको हम कहते हैं क्यू वर्ड्स, एंड उससे हम आंसर्स को कैसे बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, राइट. तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड and I bet that it would definitely help you out on a good presentation, efficiency and effectiveness, right? So see you soon. Bye. I'm going to take up the tips on how to attempt your exam. That would also cover all those other areas. One is what you have to exactly write in your exam in English. Secondly, the other aspects also कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट. सी व्हेन यू आर गोइंग टू रिसीव योर, आज I took the same thing for 10th also. The you might you I had been I just had a word with all of you that where your centers are there. The reason is that on the very first day or during the board exams, वैसे भी आपको पता है दिल्ली का ट्रैफिक इज समथिंग वर्ल्ड लेवल. तो you need to reach the venue or your center by 9:30 max. 9:15 से 9:30 के बीच में आपको सेंटर पहुंच जाना चाहिए. And when you reach within 5 or 10 minutes, they would ask you to move inside. You are not supposed to take any bag, anything, unless and until you are diabetic, you have a special permission, then you would be allowed to take some munch or lunch, something like that. Otherwise, nothing. No water bottle, nothing. आपको वहीं सब कुछ मिलेगा, मतलब खाना वाना नहीं मिलेगा. I mean to say, water you will be getting over there. Even if you are taking the pouch, it should be transparent, that your teacher might have already informed you. And even the exam board, it should be transparent only. If you are taking, तो वो transparent होना चाहिए. There should be nothing should be written on over it. तो जब आप वहां पहुंचते हो 9:30 तक, तो you would be asked to enter. On the very first day, definitely you will have the problem because you have to locate your roll number, your class. Maybe it is on the first, second, third floor. You have to go over there, sit on the seat. At 10, you would be on your seat and you would be given your answer sheets, which would look like this. And on the answer sheet, you have to write your name that you might have practiced in your school also. You have to write your, that is why yesterday I made it, your name, your subject, your date, what will be the date on that day, and code. तो कल एक प्रॉब्लम आई थी. देर आर टू इंग्लिश इन आवर 10th एंड मतलब 9th ऑनवर्ड्स. वन इज इन इंग्लिश कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज, उसी तरह से इंग्लिश कोर एंड इंग्लिश आपका है. तो जो हमारा है, द वन विच यू आर रीडिंग, इट इज इंग्लिश कोर.
So you need to mention this because there are two English, and in some schools like DPS, they have the second English. So you have to mention it that it is English core. And the code for English core is 301 that you would be writing. वो सारा आपका डिटेल जाएगा. Along with that, there would be an OMR sheet which you have to fill up, जिसके अंदर आप अपने नाम को, अपने OMR with a proper pen, ball pen, and उसमें आपका नेम, आपके फादर का नेम है, आपकी जो रोल नंबर है, वो सब कुछ आपका फिल होगा. So you will be taking around 15 minutes for this. At 10:15 a.m. your क्वेश्चन पेपर वुड बी गिवन. यहां से हमारा जो टाइम मैनेजमेंट का है वो स्टार्ट हो रहा है, राइट? So you would be given your question paper around 10:15. The moment you are given the question paper, now you have 15 minutes reading time. This is class 12 reading time, not reading skill. And reading time means the going through the entire paper, not the reading skills. ठीक है? Now your paper is divided into 3 sections basically. That is reading, writing and literature. ठीक है? अब आपको इस रीडिंग टाइम को कैसे इनकलकेट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 15 मिनट्स है, तो कीप 7 minutes exclusively for reading and keep the rest 8 minutes for both of them. इसमें से आपका 3 मिनट में आप राइटिंग को पढ़ सकते हो एंड द रेस्ट 5 minutes यू कैन यूज फॉर लिटरेचर पोर्शन. ठीक है? तो पहले आप क्या करोगे, यू विल नॉट गो विथ रीडिंग डायरेक्टली, क्योंकि आपने रीडिंग स्टार्ट कर दिया तो रीडिंग करते रह जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो विथ राइटिंग. So keep an analog watch with you. Only this is allowed. आपका जो analog watch है वही आपका allowed है. This one. Right? तो अपने पास में एनालॉग वॉच रखिए एंड जहां आपकी घड़ी है वहां पर आप देखते रहिए और राइटिंग को देखिए. राइटिंग में यू विल बी हैविंग नोटिस, यू आर गोइंग टू हैव इनविटेशन और रिप्लाईज, देन अ लेटर, एन आर्टिकल और रिपोर्ट. सो जस्ट गो थ्रू देम. देन बिकॉज वो आपको अपने मन में रखना है कि मुझे इसमें से कौन सा करना है. लाइक आर्टिकल रिपोर्ट में मुझे रिपोर्ट करनी है या आर्टिकल करना है, लेटर में मुझे कौन सा लेटर करना है, बस. देन गो थ्रू द लिटरेचर. You will be having RTC from Flamingo, one from Vistas, one from Poem. Then you will be having 5 questions of 2 marker, then 2 questions from your Vistas, then one long question, one long question. Usko pad. Just go through. Then come to the reading section. Reading में you have to only read the paragraph in a quick manner. Quick manner, fast reading. राइट? अब आपने फास्ट रीडिंग कर लिया, आपको समझ आ गया कि वो पैराग्राफ क्या है. योर 15 minutes विल बी ओवर. नाउ एट 10:30 you would be asked to start your answers. That is, you are allowed to write it or write on the answer sheet. अब ये हमारा पहला पेज था, तो इस पेज पे तो हम कुछ नहीं करते. सेकेंड पेज हमारा उल्टा हो जाता, उस पर भी हम नहीं करते. अब हम थर्ड पेज पे स्टार्ट हो जाते. अब हमारा आता टाइम मैनेजमेंट का स्किल. अब आपने पूरे साल, द एंटायर ईयर, यू हैव रेड राइटिंग और लिटरेचर आपने बहुत किया. मतलब आप अगर इफ यू हैव रेड ऑल द चैप्टर्स, समरी, इफ यू हैव गॉन थ्रू द वीडियोस यूट्यूब के मेरे, आपका सब कुछ आपको आता है. राइट? इसका मतलब ये है कि राइटिंग और लिटरेचर हमें आता है. दैट इज फमीलियर. मे बी अब आपने जैसे बोला कि 5 मार्कर में हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया, लेकिन आता तो आपको सब कुछ है ना. आपको ये तो पता ना कि ऑन द फेस ऑफ इट में डेरी ने क्या किया था, मिस्टर लैम ने क्या किया था. आपको ये तो पता है ना कि गोइंग प्लेसेस के अंदर जैंसी के क्या सपने थे, सोफी के क्या सपने थे, ये तो आपको पता है ना. तो दैट मीन्स यू आर फमीलियर.
तो नाउ कम टू द पोर्शन, स्टार्ट विथ ईदर बी और सी। मैं पर्सनली सेक्शन बी बोलती हूँ बच्चों को। अगर मुझसे कोई बच्चा बोलता है मैम आप बताइए, तो आई वुड से इट शुड बी बी। नाउ यहां पर आपका जो है सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स लिखा होना चाहिए, पहला आपका काम। नाउ यू विल बी हैविंग द notice, you will be having the invitations or reply, तो you have to follow the sequence, आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो नोटिस हमारा पहला है, ठीक है। तो नोटिस के अंदर हमारा क्या क्या रहेगा? योर मार्क्स आर फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। Format is the box, the name of the school, the word notice, then the date, and then the title, and then to whom you are writing, what, when, where, and the details. Then the name and the designation. कंटेंट हमारा जो बीच में आएगा दैट इज 50 वर्ड्स। तो आपका 1, 2 एंड एक्सप्रेशन 1, दैट इज ग्रामर, एक्यूरेसी, नो कटिंग, उसके मार्क्स आपके होते। देन आपका सेकंड आएगा इनविटेशंस और रिप्लाईज, डिपेंड्स आप कौन सा करना चाहते हो। तो आपने जो है इनविटेशन या रिप्लाई कर दिया, इफ इट इज व्हाट यू से द फॉर्मल इनविटेशन तो कार्ड में जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन, जो भी आपका मतलब क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा वो। देन थर्ड इज योर्स लेटर। I'll also share one thing with you. Letter writing, now you want to either you would be going with application come biodata or you would be going with editorial. यहाँ पर you need to, and it should always start from a new page. It is advisable start your letter from a new page. ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर 2 लाइन यहाँ लिख दी फिर आपने पीछे रख दिया, don't do it. Start it from a new page. It is your answer sheet, your presentation and your marks. So you need to. तो अब आपने अगर एडिटोरियल लिखा तो ऊपर एडिटोरियल लिखिए, एंड इफ यू आर डूइंग द बायोडेटा तो एप्लीकेशन का बायोडेटा लिखिए। देन योर लेटर विल बी देयर, एप्लीकेशन का बायोडेटा तो पहले एप्लीकेशन आएगा, उसके बाद आपका बायोडेटा आ जाएगा। तो लेटर पोर्शन आपका ओवर हो जाएगा। नाउ अगर मान लो आपके लेटर में इतनी सी जगह बच गई है, तो देन यहां पर आप लिखिए PTO एंड मूव टू द नेक्स्ट। बट इफ द स्पेस इज टू मच, जैसे यहां तक बच रहा है आपका पूरा यहां तक बच रहा है, देन यहां पर जो है यू कैन स्टार्ट। नाउ यू वांट टू मेंशन विच क्वेश्चन यू वांट टू डू, वेदर यू आर गोइंग टू डू आर्टिकल और यू आर गोइंग टू डू रिपोर्ट, आपको ये लिखना है। देन आर्टिकल है तो द टाइटल, देन बाय, एंड रिपोर्ट है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इफ इट इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट तो आपके यहां पर आ जाएगा, एंड इफ इट इज अ मैगजीन तो आपका यहां पर आ जाएगा। तो यू हैव टू मेंशन विच वन यू हैव डन। नाउ योर्स इज ओवर। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट में। ये आपका सारा जो है, अगर मैं टाइम को इफ आई कैलकुलेट, तो नोटिस आपका मैक्सिमम शुड टेक 4 मिनट्स। सेम इज फॉर आपका इन्विटेशन टू रिप्लाई, इट शुड टेक नॉट मोर देन 4 मिनट्स। एंड लेटर और आपका वो 5 to 6 मिनट्स, इवन 7 या 8 मिनट भी रखोगे तो आपके पास 15 मिनट्स का वो हो गया, और 8 मिनट्स यानी कि 23 मिनट्स विच यू कैन टेक ऑन अ होल। आप इसको 30 से 35 मिनट्स में पूरा कर सकते हो। बहुत सोच समझ के भी करोगे तो 30 to 35 मिनट्स नहीं जाएंगे। अब आपके सामने घड़ी है, तो अपने घड़ी देवी को देखिए। 10:30 आपने स्टार्ट किया है, तो बाय 11:15 आई एम टेकिंग 45 मिनट्स, यू शुड बी कंप्लीट विद योर राइटिंग सेक्शन। अब 11:15 पे आप अपने लिटरेचर पे पहुंच जाइए, एंड लिटरेचर के लिए आई अलॉट 1 आवर, क्योंकि हमें आरटीसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, एंड सेकेंडली जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें आते हैं।
तो इवन इफ यू आर डूइंग इट 1 hour या 1 hour 15 minutes में भी अगर आप अपना लिटरेचर करोगे तो यू विल बी हैविंग 1 hour with you for your reading skills, right? अब रीडिंग स्किल्स वो कैसे करना? अब हमारे पास हमने जो है फर्स्ट में जब हमारे पास रीडिंग आया था तो हमने ये तो हमारे दिमाग में आ गया कि व्हाट द रीडिंग स्किल वाज अबाउट. क्वेश्चन नंबर 1 वाज अबाउट साइबर क्राइम, सेकंड वन वाज अबाउट मतलब कि सोशल मीडिया. हमें हमारे दिमाग में आ गया. अब आपको पहले रीड करना है दोबारा. देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस. Most of the time the questions are in the sequence of the paragraph. जैसा पैराग्राफ होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. व्हेन दोबारा से अब आपने एक बार रीड किया फिर क्वेश्चन को रीड किया दोबारा आप रीड करोगे तो आपको 70% आंसर्स आपको मिल जाएंगे. 70% आई बेट. फिर आप दोबारा आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर्स लिखो तो आपको बाकी भी मिल जाएंगे. तो आपके पास ये जो 1 घंटा है उसमें आप 45 minutes to 50 minutes आप आराम से रीडिंग स्किल को पूरा कर सकते. अब आपके पास कितना मिनट बच गया? 10 to 15 minutes डिपेंडिंग ऑन योर राइटिंग स्पीड. दैट 10 to 15 minutes यू हैव टू यूटिलाइज. लाइक आपने सेक्शन स्टार्ट किया बी. आफ्टर ईच question you should put a line. If you are not putting it after each question, at least मतलब सब questions में नहीं डाल रहे तो at least जैसे आपका writing skill जहां खत्म हो गया है वहां पे डाल दीजिए. Then move to the second section. जो भी आप section लिख रहे हो उसको लिखिए. Section C literature and then put it. Then after each question जब आप RTC आपका होगा RTC खत्म होने के बाद line. फिर उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे. 5 क्वेश्चंस होंगे. गिनकर 5 क्वेश्चंस करिए. उसके बाद आपका लाइन. उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन पहला नहीं सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा फ्रॉम विस्तास. 2 क्वेश्चंस होंगे लाइन. फिर उसके बाद आपका विस्तास करके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे दिस. और हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़िए और फिर लाइन खींचिए. ऐसा नहीं है कि आपका आरटीसी खत्म हुआ वहीं से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. डोंट बी माइजर. आप लोगों को जो है यू डोंट नीड टू बी कंजूस. आपको खुल के आंसर को लिखना है. तो ये आपको जो है अपने टाइम मैनेजमेंट में बहुत फर्क आएगा इफ यू आर फॉलोइंग दिस रिलीजियसली. जैसा मैंने आपको बोला आप अगर रिलीजियसली फॉलो करोगे आपका बिल्कुल पूरा होगा. कोई क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा. सेकेंडली when you are attempting your exams in boards, जिस पेन से आप पूरे साल लिखते हो उसी पेन को यूज करिए क्योंकि आपको उसका ग्रिप जो है ना वो आपके हाथ में होगा. सो वॉट एवर काइंड ऑफ पेन यू आर यूजिंग यू शुड यूज द बॉल पेन. सो कि एंड जो यूज कर रहे हो उसके 5 या 6 रख लीजिए अपने पास. कलर चेंज नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक बार आपका जो है लाइट ब्लू गया दूसरी बार आपका डार्क ब्लू गया. तो जो खरीदोगे एक जैसा खरीदिए एंड यूज द सेम पेन इवन इफ वो खत्म भी हो जाता है तो. इन ऑल द क्वेश्चंस वेयर यू रिक्वायर अ बॉक्स पुट द बॉक्स विद अ प्रॉपर स्केल. और अपनी जो राइटिंग है उसको ऐसे रखिए और आंसर्स के बाद प्रॉपर लाइन खींचिए. दिस ऑल विल गिव यू एक्स्ट्रा एज इन व्हाट यू सेट माय मार्क्स. आपको डेफिनेटली मिलते हैं when you are putting the question number, when you are putting the options, when you are putting. Now let us come to the literature section जो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 5 पोएम्स है. You have 5 poems. So learn the name of all the poets. पोएट्स के नाम आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए. Whether it is कमला दास और पैब्लो नेरूडा और आपका जॉन कीट्स कोई भी हो स्टीफन स्पेंडर आपको सारे या एलिजाबेथ जेन सारे याद होने चाहिए. While you are writing the answers in the RTCs, you will be having 4 questions.
और 5 और 6 ऐसे होते हैं। समटाइम्स अ क्वेश्चन मे बी लेस, लेकिन आपकी जो वेटेज है वो 2 मार्कर हो सकता है। तो look at the weightage of the questions. Like in your reading skill also this is there. There are 2 questions in each question जो दो दो मार्क्स के होते हैं. So they should be around 30 to 40 words. अब 30 to 40 words कितना होगा हमारा, अगर मैं ये पेज को लेती हूँ आपका, कल मेरा यही एक मेन मुद्दा था आपका कि हॉरिजॉन्टल शीट में करो, तो हम एज अ टीचर इवैल्यूएटर वी थिंक दैट ए चाइल्ड जो बहुत ऐसे लिखता है उसके लिए तो ये 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। बट एक बच्चा जो खुल्लम खुल्ला लिख रहा है या फिर एक एवरेज लिखेगा, तो हम सोचते हैं देयर विल बी 10 वर्ड्स इन ईच लाइन। दिस इज एन एवरेज विच नॉर्मली बोर्ड काउंट्स। तो अगर हमारा 40 टू 50 वर्ड्स है तो हमारे 3 से 4 लाइन के बीच में इट शुड कम। एंड इफ इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, in the long question you have to take it 10 to 12 lines डिपेंडिंग ऑन आप कैसे लिखते हो। मतलब अगर आप कीड़ा मारते हो तो आपका 8 लाइन में 6 से 7 में आ जाएगा, बट आप बहुत खुला लिखते हो तो आपके 12 लाइन भी जाएंगे, लेकिन आप एवरेज लिखते हो तो 10 जाएंगे। तो दैट मीन्स 8 to 10 लाइन्स इज योर एवरेज फॉर राइटिंग अ लॉन्ग क्वेश्चन। दैट इज आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क का आ रहा है इसके अंदर, वो आपके इस तरीके से आएंगे। सो इन योर on your exam sheet this should be there. So this you have to understand, right? अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा भी था मैं वो बता रही हूं। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आ गया आपका जिसमें आपको 2 मार्क्स का आंसर लिखना है, लेकिन आपके पास जो आंसर है वो सिर्फ 1 लाइन में है। या फिर यही क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ गया बट आपके पास आंसर सिर्फ एक आंसर एक ही मार्क्स में। मैं क्या करूं? व्हाई वाज साहेब हैप्पी? साहेब वाज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। हमारा आंसर क्या है इसका? साहेब वाज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। अब ये तो ना तो 30 40 to 50 वर्ड्स में आ रहा है, और जैसे मैम ने कहा था कि ये तो 4 लाइन में भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? राइट, दिस विल बी द क्वेश्चन इन योर माइंड। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको इसे पहले का थोड़ा सा बताना है। यू शुड गो टू द प्रीक्वल। पुष्पा 2 तब तक आप नहीं देख सकते हो जब तक आपने पुष्पा 1 नहीं देखी है। तो आपको जो है पुष्पा 1 में जाना है। उससे पहले आपको बताना है दैट साहेब वॉज अ रैग पिकर, ही डिड नॉट हैव स्लीपर्स, उसके पास स्लीपर्स नहीं थे। When the author asked, he was embarrassed and he told that he did not, his mother did not bring it down. But now Sahib was wearing a new, an old pair of slippers which had been donated by some rich person and he was happy. वही क्वेश्चन, जवाब आपका अलग। ये वाला वर्ड आपका आ गया, लेकिन उसको आपने थोड़ा सा पहले से स्टार्ट किया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, क्योंकि अब आपके पास इतना ही है, यही आंसर है, अब इतने से आंसर में से आपको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। तो इफ इट इज ऑफ 2 मार्क्स आप इसको ऐसे लिखोगे, और 5 मार्कर है तो आप उसको थोड़ा और एलोबरेट कर दो। दिस वे आपका वही क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आंसर में आ रहा है, दैट कैन बी रिटन इन अ 2 मार्कर वे और इन अ 5 मार्कर वे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट,
इन योर लिटरेचर पोर्शन यू हैव द क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्कर, जिसमें आपका आर्टिकल, रिपोर्ट और इनफॉर्मल लेटर, दैट इज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्लेनिंग दी path, मतलब कि एज बामा राइट अ लेटर टू जित कला सा, हाउ यू हैव ओवरकम योर discrimination. As Gandhi ji give a speech. अब ऐसे में क्या है, आपको इसमें फॉर्मेट में नहीं जाना है. आर्टिकल है, राइट द हेडिंग एंड स्टार्ट व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन. रिपोर्ट है, राइट द हेडिंग बाय एंड स्टार्ट. इनफॉर्मल लेटर है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड डियर एंड यू कैन स्टार्ट. सिमिलरली स्पीच है, ऊपर लिखिए स्पीच एंड देन स्टार्ट. माय डियर फ्रेंड्स, वॉट एवर द टॉपिक इज, आप उसको एलॉबरेट कर सकते. वहां आपको रिलीजियसली यू डोंट नीड टू फॉलो दैट फॉर्मेट जो आपको राइटिंग स्किल्स के अंदर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है. लाइक इफ इट इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, यू हैव टू राइट इट ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रिपोर्ट. अगर आपका बाय लाइन, अगर आपका मैगजीन है तो बीच में लिखना, तो वो नहीं है. यू आर बिट इजी. कई बार तो क्वेश्चन में दिया होता है यू कैन स्टार्ट विद दिस, तो वहीं से स्टार्ट कर दोगे आप. सो दिस इज हाउ द लॉन्ग क्वेश्चंस हैव टू बी डन. In the writing section, I don't think you all will be having any problem, because notice है, invitation और replies है, then आपके letters है. letters के अंदर format हमेशा याद रखिए. sender address, leave a line, date, leave a line, then the receiver's details, यानी कि the editor, the manager, the HR manager, the principal, स्कूल का नाम, कंपनी का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, एड्रेस एंड देन सिटी. अब आता सब्जेक्ट. टू अप्लाई नहीं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग माई. टू एक्सप्रेस नहीं, TO2 से स्टार्ट नहीं करना है. एक्सप्रेसिंग माई व्यूज, एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन द जो भी टॉपिक आपका है. दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड, राइट. व्हेन यू आर कंप्लीटिंग इट, तो आपका जब आप कंप्लीट करते हो, थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, ये बड़ा ये छोटा भाई, एंड देन द नेम. इन द एप्लीकेशन कम बायोडेटा, एनक्लोजर्स आर ऑल्सो गिवन, राइट. दिस इज हाउ वी डू इट. नेक्स्ट इज आपका आता है रीडिंग स्किल्स. नाउ इफ अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू स्टार्ट विथ रीडिंग स्किल्स, व्हाट टू डू, इट इज अप टू यू. मैंने आपको यहाँ पर टाइम का एक वो बताया है, दैट फॉर राइटिंग स्किल्स टेक अराउंड 30 to 40 minutes, and for literature keep 1 hour or 1 hour 15 minutes, and for reading 1 hour. तो आप वही 1 hour आप अपने सामने एनालॉग वॉच रखिए और 1 घंटे में रीडिंग स्किल को पहले खत्म करिए. देन मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. इफ यू आर वेरी कीन दैट यू वांट टू only do the reading skills at the first, so you can do it. The second is, if ma'am what to do if I have to do invitation or reply, जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो. एडिटोरियल और एप्लीकेशन कम बायोडेटा. मैं तो हमेशा एप्लीकेशन कम बायोडेटा बोलती हूँ. रीजन मैं बताऊं क्यों. क्योंकि एप्लीकेशन का मैंने रट्टा लगाया होता है. अगर मैंने बिल्कुल अच्छे से लर्न किया, 2-3 बार मैंने प्रैक्टिस किया हुआ, आई कैन यूज अ एप्लीकेशन सेम फॉर्मेट में वहीं पे यूज करूंगी. मुझे सिर्फ उसमें कट एंड पेस्ट करना है. अगर मैंने एग्जीक्यूटिव का लर्न कर रखा, वहां इंजीनियर आए तो मैं इंजीनियर भर दूंगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. एंड इफ आई हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द बायोडेटा, बस उसके अंदर वही दो दो तीन चेंजेस करने. एडिटोरियल में हो सकता है कि आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ द टॉपिक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो टॉपिक इतना अच्छा होता है, हमने 10 बार क्लास में किया होता है, 2 बार हमारे प्री बोर्ड में आया होता है, देन आई विल डू द सेम थिंग. तो you have to read the question and you have to decide it. You cannot take it on
ये कोई रॉक वो नहीं है कि हम पहले से ही सोच रहे हैं कि हम तो यही करेंगे। एंड समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली देयर वाज वन टाइम जब मतलब कि बच्चे सोचते थे एप्लीकेशन का बायोडाटा आएगा ही नहीं, सॉरी आएगा, दोनों बार एडिटोरियल आ गया था। तो इट डिपेंड्स, बट एडिटोरियल में ही होता है कि यू शुड नो द टॉपिक। Application cum biodata is a technical question because if you know what is the technique of writing, you will be able to do it. So this is how you need to manage your time, manage the questions. Now, the second thing which I want to share with you is a model answer paper of CBSE. This is not my model paper. This is on the site of CBSE. This is available for all the subjects, and if you know already, if your teachers have told you, well and good, बहुत अच्छी बात है। नहीं बताया है, आपको नहीं पता है, सीबीएसई के साइट पर जाइए, मॉडल आंसर पेपर निकालिए, जिस सब्जेक्ट का आप चाहते हो कि मॉडल आंसर पेपर कैसे करते हैं, आप उसको देख सकते हो। दैट इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट, इट इज अवेलेबल। Go to the site of CBSE. There you have this. आप यहाँ पर जो हो मॉडल आंसर पेपर डाल सकते हो, एंड ऑन द मॉडल आंसर पेपर यू विल फाइंड, ये देखिए, दिस इज द, तो आप देख सकते हो मॉडल आंसर पेपर फॉर 2024 जो आपके लिए इजी रहेगा, अपना उस पे करिए। देन आप ट्वेल्थ को करिए, ट्वेल्थ को करोगे तो आपका जो है सारे सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन सी हाउ द आंसर्स शुड बी रिटर्न इन द बोर्ड। ये ओरिजिनल आंसर शीट्स होते हैं जो मॉडल आंसर्स होते हैं टू शो दैट हाउ द एग्जाम शुड बी अटेम्प्टेड, राइट? So now if you look on the screen, you can see section A. बच्चे ने प्रॉपर स्केलिंग कर रखी है, स्केल कर रखा है, एंड अंडरलाइन कर रखा है सारे मेन पॉइंट्स को, राइट? देन इफ यू गो, बच्चा ने सेक्शन ए खत्म करके आप देख सकते हो पेंसिल से नीचे लाइन भी खींच दी है, सेक्शन बी। अब सेक्शन बी उसने नोटिस से स्टार्ट किया है, नोटिस में उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है, खुला खुला लिखा है, एंड देन सेक्शन सी, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इनविटेशन, आप देख सकते हो बिल्कुल बीच में उसने डाल रखा। देन कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज लेटर। अब आप देख सकते हो ग्रीन पेन से इसमें लिखा हुआ है टू अप्लाई को काटा हुआ है, बिकॉज द आंसर शुड बी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट टू अप्लाई फॉर। आ रहा है समझ में एवरीवन? एंड दिस इज नॉट रमास, दिस इज सीबीएसई इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट माइन। अंडरस्टूड? So now you can see that it is written not to apply, तो आप देख सकते हो ग्रीन पेन से उसको किया हुआ है, and all the important points the child has done. Then this is the, ये उसने दूसरे तरीके से किया है, the curriculum vitae, he has added, he or she has added everything. Then this is the each one teach one wala question, the very famous question, which is a, now come to section C. You can see how the child has performed. खुला खुला, उसकी राइटिंग बिल्कुल साफ, ऑप्शन भी लिखा है, एंड देन द आंसर इज ऑल्सो रिटन, एजिंग एंड मेंटालिटी मॉर्टेलिटी दोनों लिखा हुआ। सेक्शन, सॉरी, आंसर सी, ट्राई टू कीप दैट, and in this manner the child has attempted all the questions and a line has been put even after each and every answer. If you see the word limit and the way the child has presented, that is more important. तो जो आपके मॉडल्स होते हैं, जो अगर आप आंसर शीट्स किसी का भी देखते हो, यू विल फाइंड दैट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रेजेंट योर पेपर इन द राइट मैनर विद द मार्जिन, गुड हैंड राइटिंग। इंपॉर्टेंट आपको जो पॉइंट्स लगते हैं उसको आप अंडरलाइन करो, एंड आफ्टर द आंसर्स पुट अ, मतलब की एक लाइन डालिए, और इस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को रखिए। सो दिस वॉज द first part of our tips, right? Now let us move to the 5 marker question. अब 5 marker question के अंदर
द मेन प्रॉब्लम कम्स इज मैम हाउ टू राइट और व्हाट टू राइट। या जैसे यहां पर है, बोथ महात्मा गांधी and Douglas achieved success in Indigo and Deepwater, right? Use the two stories as a guide and write your closest buddy a letter. How to prepare for the impending board exams. अब आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर मतलब उन्होंने महात्मा गांधी, दोनों में क्या चीज कॉमन थी? सबसे पहले वो दिमाग में लेकर आएंगे। कॉमन था आपका डिटर्मिनेशन, यानी कि थीम को लेकर आना आपको, एंड परसेवरेंस। यही दो चीजें हमारी थी, ठीक है। अब यही दो चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए कि दोनों में क्या कॉमन था। क्या था? इंडिगो में महात्मा गांधी डिटरमाइंड थे, पीछे नहीं हटे थे, परसेवरेंट थे, अड़े हुए थे, तो बस। और आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यू मे बिगिन विद डियर आर्यश्री, और आपको जो है यू मे एंड दिस थिंग, यानी कि आपका स्टार्टिंग, इसका मतलब आपको ऊपर डेट वेट कुछ नहीं लिखना, आपको सीधा यहीं से स्टार्ट करना। ये लिख दिया आपने, उसके बाद आपको जो है लाइन लिखना। जैसे I learned about your preparation for the board exam. Board exam is nothing. It is not a rocket science. If you remember our story, यहाँ हमें स्टोरी को थोड़ा सा लेकर आना है। इंडिगो, in which Mahatma Gandhi was perseverant, determined to get the peasants their justice. Similarly, in William Douglas, when he met with the misadventure and he could not enjoy his daily activities, William Douglas determined to hire an instructor. ये सब तो आपने पढ़ा है ना स्कूल में, अपने बुक में। वही चीज यहां पर आपने चेपनी है। Therefore, if we are determined and perseverant, nothing is going to stop us. उसके बाद आपका ये आंसर आ गया और हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था और में, इन रोड साइड स्टैंड एंड लॉ स्प्रिंग, दोनों में कॉमन क्या था? द पुअर पीपल, राइट? कंसिडर दैट you are delivering a lecture on migration and broken promises. अब ये आपको broken promises याद है? इसके अंदर लॉ स्प्रिंग में अनीस जंग कहती है कि promises like mine are bleak in their bleak world. वही यहां पर आपको बताना है, यानी कि द लैक ऑफ एम्पैथी बाय द अथॉरिटीज, इसका जो हमारा थीम था, द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द लैक ऑफ एम्पैथी, वो हमें यहाँ पर बताना है। यू मे स्टार्ट ऑफ दिस वे, दैट इज आपको जो है, our society has historically characterized by migration. People migrate from one place to another because they do not, अब इसमें उसमें लॉ स्प्रिंग में वो क्यों माइग्रेट करते हैं? Because उनका जो बांग्लादेश था, they were not getting enough food, so they migrated to Delhi. Delhi being the periphery of India, still it was away from all the amenities. The authorities, the government promise people like like आपके मुकेश और साहेब आलम, but these promises are unfulfilled. They are surrounded by a vicious circle of money lenders, sahukar, who only exploit. Similarly, in the roadside stand, the people wanted some help from the city folk because the government had turned an eye towards. We all need to bring this matter. इतना करके इसको एंड कर, बस। आपको लेक्चर देना है, स्पीच नहीं। वो मैं जो देती हूँ ना लेक्चर, वो होता है लेक्चर, पता है ना आपको। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के अंदर उन्होंने क्या बोला है? आइडेंटिफाई एनालाइज द की नरेटिव टेक्निक यूज्ड बाय द ऑथर. हाउ डू दीज टेक्निक कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेगोनिस्ट चार्ली एंड द थीम ऑफ एस्केपिज्म? तो आपको इसमें एग्जाम्पल बताना है कि उसने क्या क्या चीजें देखी थी
टाइम ट्रैवल, देखो इसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है. सो यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दैट चैप्टर इन सिंपल वर्ड्स कि चार्ली एक 31 ईयर का इंसान था हु was living after the World War. He was surrounded by the insecurities, the modern day fear. Therefore, one day he hallucinated that he had gone to time travel. आपका पहला हो गया. सेकंड हो गया that he had gone to a third level which took him to the place where he had spent his childhood, the desire for simpler time. तो ये सिर्फ आपको उस कहानी को थोड़ा समराइज करके लिखना था. सबसे इजी क्वेश्चन था. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज Your Majesty, I have two wives already. If I marry who? Certainly, this makes narrative funnier. The author had used, Kalki had used number of humor and sarcasm in his chapter. ये वाला क्वेश्चन आपने करा हुआ. Readers are always captivated by humor. No doubt it adds humor to the story. Humor always captures the mind of. Today, I taking the ideas, importance of humor. लेकिन आपको क्या करना है? ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द टेल. यानी कि आपको टाइगर किंग में से 2 या 3 वो वाला इंस्टेंस लेना जिसमें आपको हंसी आ रही थी, जिसको देख के आपको हंसी आ रही थी. जैसे वो कहता है कि मेरी तो 2 बीवियां हैं भाई, मैं अब तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ. फिर वो कहता है कि वो जो टाइगर था वो इतना जिद्दी था कि वो जो है ही वॉज नॉट गेटिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल. तो वो जो 2 3, या फिर वो जो 10 दिन का बच्चा बात कर रहा था, 2 या 3 इंस्टेंट. बस आपको ये लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ, सेंस ऑफ ह्यूमर हेल्प्स अस टू डील विद द प्रॉब्लम्स टू इम्प्रूव. एक हंसी मजाक, एक हल्का माहौल, a light environment while we are conversing helps us to understand better, make the situation more healthier. Like in the chapter, फिर आपको सीधा चैप्टर से उसको कनेक्ट करना है, 2 या 3 एग्जाम्पल देना है, एंड फिर आपको एंड करना. दस वी कैन से ह्यूमर प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ. So whenever you are finding any question which you find tricky, सबसे पहले दिमाग में लाना ये ट्रिकी नहीं है भाई. ये सिर्फ क्वेश्चन को उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन उनमें से उन वर्ड्स को यू देखिए. जैसे मैंने यहाँ पे देखा माइग्रेशन, आपको याद होगा हमारा जो चैप्टर डीप सॉरी लॉ स्प्रिंग है वो माइग्रेशन के ऊपर है. ब्रोकन प्रोमिसेस, उसमें वो बोलते हैं ब्रोकन प्रोमिसेस. बस उन दोनों को आपका जो है यू हैव टू ओके ये इन इसके ऊपर मुझे लिखना है. अब उसको लिख, क्वेश्चन वही है, उसको लिखना आपको एक लेटर की तरह है, उसे आपको एक आर्टिकल की तरह लिखना है. So this is how you can always attempt the 5 marker question easily without any problem. It is only related to your what we say कि हम day to day life से उसको relate करने की वो कोशिश करते हैं. बस that is why they say give it as a TED talk, give it as an article, give it as a letter. But आपका होता वही है. It might be based on the theme only. It might be based on the message only. उसमें जो element use हुआ है उन्हीं में से आपका होगा. I'll also try to make a मतलब कि आपके लिए एक वो बनाऊंगी जिसके अंदर I'll try to put up all those important questions which you may have in your exams. That is all kinds of questions that you may expect, and you can go through that and also pay focus on that. So this is how class 12 you have to attempt your exams in your यानी कि आपका सारा मैटर होना चाहिए. प्रेजेंटेशन शुड बी देयर, एंड प्रेजेंटेशन विल बी ओनली व्हेन यू आर ऑलवेज हैविंग दैट रूटीन कि मुझे उसे कैसे करना है. एंड टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ वेरी बिग डील. टाइम मैनेजमेंट इज व्हेन यू आर डीलिंग इट. आप देखो, आप कभी भी देखना आपको हमेशा राइटिंग और लिटरेचर आती हो, क्योंकि वो हमने पढ़ा हुआ है. राइटिंग में क्या है, हमें फॉर्मेट आते हैं, बस वो क्वेश्चन होगा. इंटर स्कूल डिबेट की जगह इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन हो सकता है, बस लॉस्ट एंड फाउंड हो सकता है. लेकिन होगा तो वही ना, आपको वही तो लिखना है. नेम ऑफ द स्कूल, नोटिस, डेट, टाइटल, वही तो लिखना है. व्हाट, व्हेन, वेयर.
तो आता है हमें, लिटरेचर हमें आती है। नाउ सम स्टूडेंट सेड कि मैम वी फाइंड क्वेश्चंस व्हेन हम लोग ये कर रहे हैं तो हमें रीडिंग में, सॉरी, आरटीसी में प्रॉब्लम आती है। आरटीसी के अंदर व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट रीड द क्वेश्चंस। हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को, जो हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं ना, इन्हें पढ़ते हैं। तो पहले आप देखिए कि फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन हैज बीन टेकन। लाइक इफ यू सी, यहाँ पे आपका एक में है फिगर ऑफ स्पीच, दूसरा आपका है यूज ऑफ खादी, सिंबलाइज, देन तीसरा आपका है असर्शन टाइप है, देन व्हाई डू यू थिंक लेजर इज अ प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री, then the people at Germany have not faintest appreciation for political thought, and what evidence is talked about। तो अब आपके पास ये आपके क्वेश्चंस हैं और बाकी आपका सिंपल। तो फर्स्ट रीड इट and then find what is a communist। A communist was a godless man। godless man मतलब मेटाफॉर। अब इसको आपने यहां पर लेकर आना कि किस में ऐसा दिया हुआ है। देन व्हाट डज द यूज ऑफ खादी सिंबलाइज। खादी उस वक्त में क्या था, दैट वाज अबाउट द जनरल, आपका जो गांधीयन वैल्यू के लिए था। अगर आप इसमें इसमें पढ़ोगे तो जो लोग गांधी जी को जानते नहीं थे वो लोग भी खादी पहनते थे। दैट इज व्हाट ही वांट्स टू टेल कि जो गांधी जी को देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम वोर गांधी एंड वर्शिप गांधी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड फेंटेस्ट अप्रिसिएशन। उनको बाकी कुछ नहीं पता था, बस वो गांधी को पहन, इसलिए इसलिए वो लोग जो है खादी पहनते थे। ये है आपका, यानी इन डेप्थ आपका नॉलेज होना चाहिए। द पीपल एट जर्मनी हैव नॉट फेंटेस्ट मतलब व्हाट, व्हाई डज ही से, बिकॉज दे ओनली न्यू हु वाज गांधी, but what was the political thought that they were unaware। एक मार्क का है। what evidence is being talked about in this। अब आप ढूंढिए इसमें से और देखिए, दिस इज हाउ यू हैव टू, आपका जो रीडिंग स्किल का जो टिप है ना बच्चा, दैट गोज एविडेंस ऑफ इट was soon forthcoming। अब इससे पहले पढ़िए, such notions which prevailed everywhere else in South India at that time naturally floated vaguely among the यानी कि यहां पर बात हो रही है कम्युनिज्म। तो what evidence it is talking about, the spread of communism। तो जो मैंने आपको बोला था ना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, तो उसका पीछे का देखिए एंड यू विल इजीली फाइंड दोज आंसर्स। बट वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू बी टाइम फॉलो को हमने सामने घड़ी रखकर करना है। इट इज नॉट दैट द टीचर आज से 10:30 स्टार्ट करो, आराम से 11 बजे स्टार्ट करें, फिर कहें मैम ये क्वेश्चन छूट गया हमारा, तो वो नहीं होगा। तो ईच एंड एवरी मूवमेंट हैज टू बी यूज्ड right from 10 o'clock when you enter, when you sit on your table, from there till 1:30। it is not मेरा 1:15 खत्म हो गया, चलो मैं देखता हूँ और कौन कौन कर रहा है। no, revise it, re-revise it and then try to find। हो सकता है कि there are some way जहां आपने आपने जो है, आप मतलब कि कुछ भूल गए हो। all the names of any place, any person, all the subjects, maths, English, science, all the names of your month, they are all in, they start with capital letter, and this is one of the very common error कि बच्चे उसको small में लिख देते हैं। So try to find all the names which are given in any chapter, it should be used, it should start with a capital। when you are writing the answers, like if you are writing an answer in 2 marker and this is examine Kamla Das use vivid imagery, तो अब आपको जो है यहाँ पर in the poem, now when you are writing the name of the poem, then poem ko you have to write inside the inverted commas and in the sentence case। what is the meaning of sentence case? The first letter should be always capital। my mother at 66, the first letter should be capital and put it in the penned by Kamla Das, written by Kamla Das, articulated by Kamla Das, used vivid imagery, that is of trees, of the spilling children, of the young trees, of her mother's face like an वो सारा आपको यहाँ पर बताना। तो आपको जो है मेंशन द आयरनी इन साहिब्स नेम।
द फुल नेम ऑफ साहेब वॉज साहेब आलम, तो उसको आप अंडरलाइन कर दो या फिर इन्वर्टेड कॉमा डाल दो, आपके मार्क्स वहीं पर आपको लड्डू की तरह मिल रहे हैं। सिंपल टेक्निक्स, लर्न, read the question and use it in the right manner. Gandhi makes it clear that money and finance are secondary aspect of the struggle of Jan. Comment on the aspect that you think was most important for. ये question पता कौन सा है? Why did Gandhi agree to 25% of the compensation against 50? ये वही question है. एंड वॉट उन्होंने बोला था, इट वॉज नॉट अबाउट मनी, बट अब ऐसे क्वेश्चन में आपके पास मतलब आपको लंबा आप लिख सकते हो, ये देखो ये पूरा आप उतार लो, इसको उतार लो, सेम इसी को उतार दो नीचे, उसके बाद आप उसको करो। अकॉर्डिंग टू गांधी जी इट वॉज नॉट मनी एंड सॉरी मनी और फाइनेंस, बट द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। Besides, the landlords also had to shun away their pride. हो गया आंसर आपका 2 मार्कर में। It wasn't a Jansi kind of thing. ये उतारो। Why did Sophie wish to keep her encounter with Jansi from Jansi? तो अब उसमें क्यों करा था, आपके पास सीधा आंसर है, because it was a lie and she did not want to share, she did not want everyone to know the secret, that is why she said it was not a Jansi kind of thing. बस जहां आपको लगता है क्वेश्चन थोड़ा भी सीधा है ना, वहां से उसे पहले का थोड़ा सा ले लो एंड योर आंसर्स विल बी ऑलवेज टू द पॉइंट। एंड इन द नेम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पोएम्स, डू मेंशन द नेम ऑफ पोएट ऑल्सो, दैट वुड ऑलवेज फेच यू एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिल सकते खैर, बट ऑफ कोर्स यू विल बी, एक वो एक्सप्रेशन में आपके आ जाए। जब आप अपने पेन को यूज करते हो, पेन में ढक्कन मत डाला करो बिकॉज वो भारी हो जाता है। यूज इट, अपना ढक्कन सामने रखिए एंड सामने रखिए, लाइटली यूज करिए। घड़ी को अपने सामने रखिए, यू विल बी गेटिंग द वाटर एवरीथिंग, तो डोंट गेट पैनिक। कोई क्वेश्चन अगर मान लो आपको नहीं आ रहा, आपने 5 क्वेश्चन से आपको नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को जैसे आपने 1 कर दिया, आपको 2 नहीं आ रहा है, आपने 3rd कर दिया, लीव अ लाइन, लीव सम लाइन फॉर दैट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा 4 to 5 लाइन में हुआ, तो उतना लाइन आप अंदाजे से छोड़ दो, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी ऐसा मत करना कि यहां पर आपने 1 2 3 कर दिया और बाद में लिटरेचर भी हो गया, राइटिंग भी होगा, और एंड में आप उस क्वेश्चन को करोगे तो मे बी दैट क्वेश्चन मे नॉट बी चेक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है क्लास 12, मे बी इट हैपन्स। एंड वन मोर एरर जो बच्चे करते हैं वो ये होता है इन द राइटिंग स्किल्स, कि बच्चे ने नोटिस कर दिया इनविटेशन, उसको समझ नहीं आया, वो क्या करता है, नोटिस कर दिया, आर्टिकल कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद उसके दिमाग से निकल जाता है कि उसने इनविटेशन नहीं किया था। तो लीव दैट स्पेस फॉर दैट एंड मूव, एंड जब आप रिवाइज करते हो वहां पर देखो। दूसरा, कभी कभी गलती से हम जब पेजेस को व्हेन वी आर मूविंग, तो समटाइम्स द पेज माइट नॉट बी, वो चिपक गया हो एंड यू मे बी 2 पेज, तो एक बार रीचेक करिए, एंड अगर ऐसा कुछ छूट जाता है तो जस्ट पुट अ सिंपल दिस, गलती से हो गया, एंड फिर नीचे लिखिए PTO, क्योंकि हो सकता है द टीचर, द इवेल्युएटर मे थिंक दैट यहां आपका एंड हो गया है एंड शी और ही मे नॉट चेक। Everyone is human, so error is possible. It is not that we are God. To err is human, to forgive is heaven. So we are humans. तो हो सकता है, so if there is something जहां आपका पेज छूट गया, तो put this, और ये मत करना, a simple this will be enough, आपके लिए वो enough है। तो this means that this page गलती से आपका छूट गया है। Thus, present in the proper manner, use the page in the right way। आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि जहां पर भी आपके थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको पैराग्राफ में, पैराफ्रेजिंग इज वेरी नाइस थिंग। पैराग्राफ से क्या होता है कि द थिंग्स आर वेरी क्लियर, देयर इज क्लैरिटी, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दैट, आप उस टेक्निक को यूज कर सकते हो। एंड इन दिस मैनर इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर पेपर,
बिलीव मी, यू विल नॉट बी लेफ्ट। आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन जहां आप अटक जाते हो और आपको लग रहा है, वो क्वेश्चन मैथ्स में सबसे ज्यादा होता है ऐसा, मैथ्स एंड केमिस्ट्री जिन बच्चों के पास होता है, अकाउंट्स होता है, वो अटक जाते हैं, ये क्वेश्चन किस में से था, ये रेशियो में से था, ये रेशियो वाला क्वेश्चन, क्योंकि रेशियो वाले में हमेशा प्रॉब्लम्स आती है, वो वहां पे अटक जाते हैं। डोंट, अगर आप अटके ना, तो आप अटके तो आप भटके। अगर आप अटके हो तो आप भटके, दैट मीन्स आप वहीं पे स्टक हो जाओगे। वहीं आप, जब आपको लग रहा है ना कि 2 बार में ही नहीं हो रहा, छोड़ दो, वहां पर जगह छोड़ दो, एंड मूव क्लियरली टू दोज क्वेश्चंस विच आर, आपको अच्छे से आता, जल्दी से कर दो। देयर इज ऑलवेज वन फॉर्मूला जो हम हमेशा बोलते हैं, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। And that is why I told you that you should start with your writing, because most of the time writing is easy. Literature is bit moderate since it is long, and then go to the difficult section, because reading हम लोगों ने नहीं किया होता है, and sometimes हम reading में इतना ध्यान करते हैं कि हमारा आधा टाइम उसमें चला जाता है। So even in the questions also, if you find that some question you have not done, like आपने 5 मार्क का क्वेश्चन था, आपको नहीं आता था, आप उतनी जगह उसके लिए छोड़ दीजिए, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेवर राइट अबाउट दीज, ये जो इस ये ना ये मार्जिन, इनके ऊपर कभी मत लिखना। देर इज अ, यहाँ पर आपके कोड होता है, वो मतलब कि स्टेपल होता है, तो इनके ऊपर कभी मत लिखना। वेर एवर यू आर स्टार्टिंग आफ्टर दिस, यहाँ से स्टार्ट करो, राइट? So if you are using all these tips, all these techniques, once go through all the chapter summary, go through the questions which I'll be sharing, आपको जो है कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जहां आपको लगता है 5 मार्कर में, सबसे पहले 5 मार्कर में थीम को और मैसेज पर ध्यान करिए, बस। दैट इज दी व्हाट यू कैन से टिप ऑफ द डे, कि आपको उसका थीम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द थीम, मैसेज और ऑन द कैरेक्टर स्केच। हर चैप्टर में से कैरेक्टर स्केच देखिए आप। थर्ड लेवल में कैरेक्टर स्केच किसका था, लुइसा का है या चार्ली का होगा। देन सेकेंड चैप्टर में आप देखिए किसका होगा, टाइगर किंग वाले में किसका होगा, टाइगर किंग का होगा या फिर उसके दीवान का होगा। थर्ड में देखिए आप, अंटार्कटिका वाले में यू वोंट फाइंड एनी कैरेक्टर स्केच। देन फोर्थ में आप जाइए, एनिमे में जाइए, आपके पास डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर स्केच इज देयर, हाना का कैरेक्टर स्केच इज देयर, आपने उसको डिफाइन करना है। मिस्टर लैम एंड डेरी, एंड लास्ट आपका जो है, उसका नाम क्या है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसमें आप कैरेक्टर स्केच नहीं आएगा, क्योंकि दैट्स नॉट अ स्टोरी, दैट्स अबाउट द थीम। Similarly, if you start with the last lesson, you will not have any character sketch. Only जो डॉक्टर, सॉरी, मिस्टर हेमल है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, नॉट द कैरेक्टर स्केच, बिकॉज वी हैव नॉट रेड अबाउट द कैरेक्टर, वी हैव जस्ट रेड अबाउट हाउ ही वाज डीलिंग द क्लास, उनका टीचिंग का क्या मेथड था। देन डीप वाटर यू मे हैव, इंडिगो यू मे हैव अबाउट गांधी जी, हिज लीडरशिप क्वालिटी। देन पोएट्स एंड पैनकेक्स में हम किसी का नहीं लेके चल सकते हैं, इंटरव्यू में नहीं लेके चल सकते हैं, सोफी का हो सकता है, सोफी के फादर का हो सकता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड। So there will be three, either that would be message, that would be the theme, or that might be the character sketch. So identify that, and उसको आपने as an article, as a letter, as a TED talk, as a speech आपको present कर, right? So this is how your paper in English should be done. And it is not about English. The presentation is for each and every subject, whether it's business or accounts or physics or chemistry. The presentation should be there. Please go with the model answer papers that would help you out to how to present your examination paper in the right manner. Right, class 12, I hope that this session would have been very helpful to you.